Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with a very important topic, that is Congo declares end of latest Ebola outbreak. Congo ने declare कर दिया है कि इबोला आउटब्रेक जो है अब वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है और खत्म हो चुका है. Now this is a very important topic because abhi right now there is a lot which is going on, not just in other parts of the world but also in India. So when we see such kind of news that Congo has declared that Ebola outbreak has ended now, this brings some kind of relief to all of us, right? So let's start talking about this Ebola outbreak. What exactly is Ebola? And this is important for your preliminary examination. कि Ebola virus क्या है? What are the symptoms? How it gets detected? How it gets transmitted? And what are the parts of Africa that it has impacted? Studying that is very important for your upcoming preliminary examinations. Okay. So let's start. Also, the class PDF will be uploaded on my Telegram channel, that is Simplifying UPSC with Ease. क्लास का जो PDF होता है, लेक्चर का जो PDF होता है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से बहुत इजीली मिल जाएगा, जिसका नाम है Simplifying UPSC with Ease. वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. Let's start the class. Before that is a small announcement for all of you, but उसको हम अभी आगे देखेंगे. Let's look at the news. Now, when we talk about this news, it says that Democratic Republic of Congo, that is DRC, it has officially declared the end of 12th Ebola outbreak. 12th Ebola outbreak हुआ था वहां पर. कोंगो ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि अब ये आउटब्रेक खत्म हो चुका है. Since the outbreak declared on Feb 7, 2021, there were 12 cases that had been reported. And thanks to the experience of DRC's response team, the Health Ministry of Democratic Republic of Congo has said that epidemic has been brought under control. 3 महीने से कम के समय में एपिडेमिक को कंट्रोल में लाया जा चुका है. While the epidemic is over, we must remain vigilant to possible resurgence. ऐसा नहीं है कि अब बस सब बढ़िया हो गया, बाहर निकल के पार्टी करेंगे, नहीं. रिसर्जेंस भी होता है, वायरस लौट के भी नए वेरिएंट के रूप में आता है. इस वजह से अभी फाइनली हमें कंट्री के ऊपर अभी भी थ्रेट है. हमें बहुत विजिलेंट होके रहना है, बहुत आप बोल सकते हो चौकन्ना होकर रहना है. इबोला फीवर जो होता है ये बहुत सीवियर, बहुत फैटल डिजीज है, जो लोगों को, मंकीज को, गोरिल्लाज और चिंपैंजीज को भी इफेक्ट उसके उनके ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है. सिम्टम्स इसके हैं फीवर, हेडेक, जॉइंट मसल पेन, सार थ्रोट एंड वीकनेस. देन इट कैन बी फॉलोड बाय डायरिया, वॉमिटिंग, रैशेस, इंटरनल एक्सटर्नल. काफी हद तक इसके जो सिम्टम्स है ना वो काफी हद तक कोविड से भी मिलते जुलते हैं. द इन्फेक्शन ऑफ इबोला वायरस, इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ रिवर इन कॉन्गो. कॉन्गो में वायरस आया था. कॉन्गो में रिवर है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया. 1976 में पहली बार इसका थोड़ा सा इन्फेक्शन स्प्रेड होना, ओरिजिनेट होना शुरू हुआ था. कोई इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है. सिक पर्सन को आइसोलेट किया जाता है, फ्लूइड्स दिया जाता है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया जाता है. बहुत मिलता जुलता ये कोविड से है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. एंड इसका स्प्रेड कैसे होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड सिक्रीशन. कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके ब्लड सिक्रीशन से अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हो, उससे स्प्रेड होता है. कॉन्टैक्ट विद कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक नीडल्स, contact with infected animals, possibly eating contaminated meat, that also results into the आप बोल सकते हो this virus, transmission of this virus. Now here we have launched new batches from today on Unacademy Plus. 5th में से नए batches start हुए हैं Unacademy Plus पर. We have 1 year batch for all of you that has started from today for 2022 aspirants. If you are preparing for 2023, we have 2 year batches also. अगर आप prelims की तैयारी कर रहे हो और अभी postponement होने वाली है शायद एग्जाम की, क्योंकि सिचुएशन काफी इस वक्त तनावपूर्ण है, तो अगर आपने एनसीईआरटी कवर नहीं करी है तो एनसीईआरटी के बैचेस भी हमने लॉन्च किए हैं. 5th में से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो आज के आज. यू कैन यूज कोड अर्पिता10 टू गेट 10% डिस्काउंट एज वेल ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन. लिंक्स ऑफ ऑल द बैचेस हैव बीन गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो अनअकैडमी पे तैयारी करने के लिए अनअकैडमी लोन फॉर यूपीएससी लेकर आया है. यहाँ पर 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा. नो प्रोसेसिंग फीस, नो हिडन चार्जेस, मिनिमल पेपर वर्क. यहाँ पर आप कोड यूज कर सकते हो अर्पिता10 और नाम अर्पिता शर्मा यूज कर सकते हो. एजुकेटर का नाम अगर पूछा जाए तो, जिससे आपको टीम कॉन्टैक्ट करेगी. फॉर्म मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझा देगी. तो आज के आज फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज नए बैचेज आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है,
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इबोला वायरस डिजीज जो है इसको हम इबोला हेमोरैगिक फीवर भी बोलते हैं। बहुत फैटल इलनेस है ये ह्यूमंस में। 2014 टू 16 में इसका मेजर आउटब्रेक हुआ था वेस्ट अफ्रीका में, सबसे बड़ा मेजर आउटब्रेक माना जाता है। 1976 में डिस्कवर हुआ था वायरस और इसका सबसे बड़ा आउटब्रेक 2014 से 16 के बीच में हुआ था वेस्ट अफ्रीका में। और आउटब्रेक गिनी में स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे सिरा लियोने में तक ये फैला, लिबेरिया तक भी गया। उसके बाद ये कॉन्गो में करंट 1819 में आउटब्रेक कॉन्गो में हुआ था, जो हाईली कॉम्प्लेक्स आउटब्रेक था। इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, ये लोगों से वाइल्ड एनिमल्स में स्प्रेड होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन में स्प्रेड होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है। और इसकी फैटिलिटी रेट 50% है, ठीक है, 25 से 90% भी रही है इसकी फैटिलिटी रेट, ये आपको याद रखना है। और इसमें कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, देखो जब भी किसी तरीके का ऐसा ट्रांसमिट होता है, वायरस फैलना शुरू होता है, सबसे पहली चीज है सोशल डिस्टेंसिंग यू हैव टू मेंटेन। जितना हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जितना हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सिम्टम्स हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। फटाफट से डे 1 से ही डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, डॉक्टर को बताते रहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर्विलेंस गवर्नमेंट करे, कांटेक्ट ट्रेसिंग करे, अगर किसी को हुआ है तो उसके कांटेक्ट में कितने लोग आए हैं उनको ट्रैक किया जाए। एक गुड लेबोरेटरी सर्विस और सोशल मोबिलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड किए जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाए। जिस आज आप देख रहे हो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेस की वजह से काफी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली काफी लोगों को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है इस वक्त हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के वीकनेस के कारण। तो सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो प्रिवेंशन और ज्यादा इजी हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या रहता है, अर्ली सपोर्टिव केयर, स्टार्टिंग में ही सपोर्टिव केयर प्रोवाइड किया जाए, रिहाइड्रेशन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाना चाहिए, उससे सर्वाइवल रेट और इंक्रीज हो जाता है। अभी फाइनली कोई लाइसेंस ट्रीटमेंट तो प्रूव नहीं हुआ है इस वायरस के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ना पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। क्लिनिकली इस बहुत डिफिकल्ट होता है, मलेरिया टाइफाइड फीवर से अलग है, क्योंकि इबोला तो इसको डायग्नोस करना काफी मुश्किल होता है। बट कुछ डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं जैसे कि एलिसा, एंटीबॉडी कैप्चर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, एंटीजन कैप्चर डिटेक्शन टेस्ट, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, देन आरटीपीसीआर टेस्ट जो कि अभी कोविड के टाइम पे भी किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड वायरस आइसोलेशन बाय सेल कल्चर। दीज आर द वेरियस टेस्ट विच आर रिक्वायर्ड इबोला को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स है फीवर, फटीग, मसल पेन, हेडेक, सार थ्रोट, वॉमिटिंग। आप देखोगे कुछ कुछ ना फंक्शंस इसके एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसे भी हैं, इसीलिए इसको डिटेक्ट करना स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम से नहीं पता चल एकदम से आप नहीं सोच सकते हो कि अरे ये वायरल इन्फेक्शन है, ये इबोला ही है या ये कोविड ही है। तो थोड़ा टाइम, शुरू के 2-3 दिन में यही कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअली में ये वायरल इन्फेक्शन है या कुछ और चीज है। तो इसलिए अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर की अगर सलाह ले ली जाए, खुद से सेल्फ मेडिकेशन करने से अच्छा है डॉक्टर के पास जाके उनको अपने सिम्टम्स बताएं और उस हिसाब से प्रोसीजर आगे कैरी करें, तो वो ज्यादा सेफ रहता है, ठीक है। तो ये था आपकी आज की क्लास। आई होप आपने एंजॉय की हो आज की क्लास, उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इसी नोट पे आई एम रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू for participating in this class with me.